Welcome to the world, my darling daughter. I got the news of your birth from your dadi on 18 September 1986. While intimating to me the news of your birth, your grandmother did not express the joy that she undoubtedly would have shown had a been son born in your place, because you are a girl. Your birth did not bring a joy to our home. So the goody has arrived, said your aunts, in the sudden tone, as if nature had given me an unfair deal. Your uncle did not speak to me today. Perhaps they think it's the best to say nothing in these circumstances. I'm sure that my friends and comrades who share and empathies with my ideology will congratulate me and demand a party in a celebration of your arrival. Your dadi is surprised by the congratulatory messages she has been received from your mother native family. Whoever sent congratulatory messages on the birth of a girl is how she seems the situation. Your dadi is saddened by the fact that I stand diminished with your arrival, as a son, on the other hand, would have added in my status. My darling, I am not in the least surprised by their reactions. I am aware that in the present social system, a girl considered a burden, a source of indebtedness. I had heard and read a lot on the subject. Today I am having to live through the same experience. Perhaps your dadi is even more saddened because in her view I am unemployed and useless. So at least you should have been born to someone with a proper source of livelihood. This is how society has been centuries, and the enslavement of a woman is an integral part of a feudal capitalist system. Dear daughter, your father is neither a good for nothing nor worthless. He is busy in the struggle to change the present social setup where the birth of a girl is greeted not with a joy but a sorrow. There is no doubt, but even many progressive-minded people who are regarded as the path breakers and the leaders have in the practical life behaved in a much the same fashion as to be expected from the hardcore reactionaries. But I have resolved to live my life in a fashion there is no dichotomy between word and deed. My lovely one, it will perhaps to be a long time only after you're grown up that you appreciate the idol of my life and the struggle that I've engaged in. Perhaps I have been unsuccessful in explaining to your mother till that date. I am not killing the time, but in fact investing in it to fulfill of very lofty aims. I am struggling for the birth of social order in which the sadness of enslaved human beings are broken to bits, where the oppressed have been sign of relief. The struggle is one for the starving children, women who are forced to sell their bodies in order to feed their bellies, of workers who trade their blood for the bread, of peasants growing under the crushing burden of a debt. And this is a battle for a new world, for your father to playing a humble role. In this time in which you have been born, Punjab stands divided along a communal lines. In some places, people are being killed because they do not grow their hair long enough, while in another place, they are being burned alive for precisely opposite reasons. Humanity has been butchered at the name of religion, having created a division among the people, having intimated wholly that being played with the blood, the devil is having a good laugh from the distance. My baby, in this moment, your birth, your father is engaged in the battle against the forces of darkness. Such forces have been trying to banish every sun that could bring the light to this world. My darling young one, it is absolutely essential to the struggle against such evil conspiracies, even at the risk of one's own life. I cannot be certain in the search of light. I too will not be done away with. Whatever may happen to my little one, you will forever to be proud to be born a father who battle against the evil strong. Perhaps I will be unable to provide you the comforts or fulfill your responsibilities that is unexpected from your father, but the legacy of my principles will leave behind will be precious.
You are the flame of the candle that destined to spread the light we wear. Do not even get misled by the devils or conspires to torch home of poor and the name of humanity. The struggle of my people is certain and end of victory. You might hopefully be spared in the era of darkness in which people are today forced to live. Hopefully the seed of sacrifice that we are sowing today will give a birth to a garden in which you can inhale the breath of a freedom. If we are unable to win this battle, my darling, try. You must be the head of a caravan and engage the battle for the truth. It is far more from my dream that you grow up for the Hindu, Muslim or Sikh. Try. You must be a rise above these identities as a human being. Beware, least humanity has been diminished because of such a division. My darling daughter, these are few words, my messages to your moment of your birth. I hope you will accept it and try act according to this. These are the few words of foundation of your life. Build up your dream on it. So, my father has written this letter to me that time in 1986 because he know जो लड़ाई वो लड़ रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के लिए, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जेल में जाएंगे, बिकॉज वो जेल में भी गए. बट ही ऑलवेज वॉन्ट अ डॉटर. एंड आज लड़कियों की कॉन्क्लेव है, तो मुझे लगा कि जो पावर मुझे ड्राइव करती है अंदर से मुद्दों के ऊपर बात करने की, इस किसान आंदोलन में जो एक पावर ने ड्राइव किया मुझे इस किसान आंदोलन में आगे आके लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, वो ये एक लेटर पावर थी मेरे फादर की जो उन्होंने मुझे लिखी थी उस टाइम पे. तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इस आंदोलन के दौरान मैंने बहुत कुछ सहा, मैंने बहुत कुछ सुना, मैंने बहुत कुछ देखा. इस एजेंसी जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो आपको तोड़ने की कोशिश करती है, बहुत लोगों ने मुझे कॉमरेडनी कहा, नक्सलवादनी कहा, बहुत कुछ कहा. मेरी पिक्चर्स की फोटोज उठा के मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की. ये कुछ ऐसी साजिशें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एक लड़की को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती है. सो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग बनके निडर होके इस पहले मोर्चे को मैं इसका हिस्सा बनी और इसको फतेह की तरफ जहां ये हमारे लोग लेके गए, मैंने ये एक्सपीरियंस किया. तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाले बहुत ऐसे मोर्चे हमने लड़ने हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट. बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा. हमने निडर होके, हमने ये नहीं सोचना कि हम लड़की हैं, हमें डरना चाहिए, हमें घबरा जाना चाहिए. नहीं, हम लड़कों से कम नहीं है, हम बराबरता के साथ जिएंगे, सिर ऊपर उठा के हर एक फैसले की, हर एक जंग और ट्रूथ और जस्टिस की लड़ाई लड़ेंगे. यही कहना चाहूंगी. इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम कॉमरेड. धन्यवाद. शहीद कॉमरेड बलवंत सिंह मान को लाल सलाम. हमारे बीच केरल की पूर्व हेल्थ मिनिस्टर पहुंच चुके हैं. हम राजस्थान की तरह पे उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं. कॉमरेड के शैलजा को लाल सलाम. कॉमरेड के शैलजा को लाल सलाम. कॉमरेड के शैलजा को लाल सलाम. कॉमरेड, अगले वक्ता के रूप में मैं एसएफआई की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड वीपी सानू को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपनी बात रखें. कॉमरेड वीपी सानू. ओके, सॉरी कॉमरेड, अभी असल में उनकी फ्लाइट है कॉमरेड के शैलजा की, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए उनको ही आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें. कॉमरेड के शैलजा.
Satyam, धन्यवाद. I cannot speak in Hindi, so I want to speak in English and Dipta will translate it. Dear comrades, I am proud to be here, especially with the militant young students of SFI and also the comrades of Communist Party of India Marxist, Kisan Sabha and all the progressive movements in Rajasthan. मैं आप लोगों के बीच आके बहुत खुश हूँ. पर्टिकुलरली जो एसएफआई के संघर्षशील साथी है, किसान आंदोलन के नेताएं हैं और यहाँ के कम्युनिस्ट आंदोलन के जो नेता हैं, उन सारे लोगों को मेरी बधाई, मेरी क्रांतिकारी इस्तकबाल. SFI invited me to participate in the Women's Conference, International Conference, and they have some important agenda in front of the conference about the education in the post-COVID scenario. What is the losses after the COVID-19 pandemic? एसएफआई ने मुझे आमंत्रित किया है उनकी छात्राओं की कन्वेंशन के लिए. इन कन्वेंशन में वो शिक्षा के बारे में बहुत सारे बातचीत करेंगे. जो लॉकडाउन रहा, जो पैंडेमिक रहा, उसके कारण किस तरीके से छात्राओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. Recently, SFI published the document, Indian Researcher, and it is a good study about the education system in India, and the adverse effect of the pandemic is well drafted in that document, and under the leadership of SFI all India leaders including Dipsisa and the SFI Secretary and President and Sanu and all other comrades, they had a very good research and they published a document which speaks all about the losses in education sector, not only in education and in the economic slowdown and the increase in the poverty and how the child marriage increases and how the atrocities against the women increased during these pandemic years. भारत की छात्र फेडरेशन ने इंडियन रिसर्चर नाम की एक जर्नल उन्होंने पेश की है, जिसके अंदर पेंडेमिक के दौरान छात्राओं के ऊपर जो जो प्रभाव आई उसको एनलिस्ट किया गया है. उस पर लिखा गया है कैसे लड़कियों को जबरदस्ती शादी कर दिया गया है, कैसे लड़कियां पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, उसके ऊपर उस इंडियन रिसर्चर जो जर्नल है, जो रिपोर्ट है, उसमें बातचीत की गई है. I request you all to study that document well and should have very good discussion on that, and you should organize very good struggles to get back the rights of the students and not only the students but the poor people in India. हम अर्जी करेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है आप सब लोग मन से पढ़े, उसके ऊपर डिस्कशन करें, चर्चा करें और कैसे जो लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से छूट गई है, जो महिलाएं पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, कैसे उनको हम वापस ला सके, उसके लिए आप संघर्ष भी करें. Students Federation of India is a militant organization and it had a revolutionary history that it was formed during 1936, the year 1936, to fight against British imperialism. अंग्रेजों को खिलाफ लड़ते हुए भारत की छात्र फेडरेशन का गठन हुआ आज से 50 साल पहले. इनका जो इतिहास रहा है वो इतिहास संघर्षों का रहा है. इनका जो इतिहास है वो इतिहास गौरवान्वित है. Students participated in so many struggles to get education and to fight against untouchability, all the social evils at that time. Even Mahatma Gandhi had a call for the students in India to boycott classes and to join in the freedom struggle, and all students come out from colleges and schools and fought hard against British imperialism, and they had to undergo several types of atrocities and they had to go to jail, and also a number of students become martyrs during the independence struggle.
भारत की छात्र फेडरेशन ने बहुत सारी संघर्ष लड़ी छात्रों की मुद्दों के लेके, अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। जब गांधी जी ने ये आह्वान किया आजादी के आंदोलन में कि छात्र है वो अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ के सड़क पे आए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बुलंद करे, तब ये हमारे ही संगठन थे, हमारे ही कॉमरेड थे जिन्होंने सड़कों पे उतर के आया। सिर्फ वो नहीं, उन्होंने अपनी शहादत भी दी और उस शहादत के बाद आज जिस आजाद देश में हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं, वो आजाद देश हमको मिला। Comrades, the independence struggle in India is not a bloodless struggle as defined by the congressman later. It is the hardship undergone by the freedom fighters. We should remember it. The British rulers made so many atrocities, and a number of young fighters should have to become martyrs during this struggle. And the students also participated in it. In that time, in India, the linguistic state was not formed, that is formed after independence, and the princely state was there, and the social condition is the feudal condition. The princess of the princely state was there, and feudal system was there, and the untouchability is the important thing and the most adverse thing in that princely states. आजादी का संघर्ष कोई ऐसे ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं कि आजादी का संघर्ष बिना हिंसा के हुआ, पर हमें पता है आजादी का जो इतिहास है उसमें बहुत सारे लोगों की खून बहे, उसमें बहुत सारे छात्राओं भी थे। ये जिस तरीके से हम आज अपने देश को देखते हैं, स्वाधीनता के पहले, आजादी के पहले ये देश ऐसा नहीं था। राजा जो होते थे, जो राजा राजराय थे, उनका जो सामंतवादी, राजवादी जो शासन है वो शासन चलता था, और सामंतवाद के अंदर छुआछूत, जातिवाद जैसा जो व्यवस्था है, पितृसत्ता जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बहुत कठोर था। The policy of British rulers is divide and rule, with joining with some kinds of rajas. Some rajas, they are acting against the other states and other princely states, and because of this kind of divide and rule principle, the people are suffering too much. And after that, in 1930s, they enacted some laws in the land ownership, and they gave some they support to the landlords in India, and some acts were enacted in India. After that, the exploitation became very high among the landlords and the poor tenants. जो लोग हमें राज किए, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो राजा राजराव हो, ये सारे लोग बांटो और राज करो इस नीति पे विश्वास करते थे। कभी कोई राजा अंग्रेजों के साथ दे देते थे और आपस में लड़ाई लड़ लेते थे। अंग्रेज जो है, पहले से जब उन्होंने ट्रीटी बनाया, अपना संबंध बनाया, तो वो हमेशा जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनके पक्ष में थे। इसलिए क्योंकि अंग्रेज भी जमींदारों के साथ हो गए, तो जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो अत्याचार भी और भी बढ़ गया। People started independence struggle under the leadership of International Congress, and after some time, they understand that this is not much to evict the British rulers from India, and some spontaneous struggles started from the peasants and also from the students and all part of the society. They were suffering too much, and they started their struggle both against imperialism and also against the landlords. पहला जो आजादी का आंदोलन हुआ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, पर उसके बाद जो आम लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको ये पता चला कि उनकी जो स्वार्थ है, उनकी जमीन के जो अधिकार है, इनके लिए लड़ने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। उन्होंने वामपंथी जो विचारधारा है उनके साथ लामबंद हुआ और सामंतवाद के खिलाफ अपना जो लड़ाई है उसको पुरजोर किया। In 1930s and 40s, people came to know about the left ideologies, especially the scientific socialism declared by Marx and Engels. As you know, in 1848, Karl Marx and Engels declared, or they published the Communist Manifesto, and in that there is a slogan, or there is a call for whole working class throughout the world to unite. The manifesto ends with these words, that workers
from all the world unite. You have nothing to lose but chains. दुनिया की मजदूर एक हो, आपके पास आपकी जो श्रृंखल है उसके अलावा कुछ खोने का नहीं है। इस स्लोगन के साथ 1930-40 के लगभग टाइम पूरी देश के अंदर जो वामपंथी विचारधारा है, जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, वो लोगों के बीच आया। कार्ल मार्क्स, एंगल्स, इन लोगों की जो विचारधारा है उससे इस देश के लोग भी प्रभावित होने लगे। The struggles organized by working class can achieve something in their lives, and according to the slogan, the working class throughout the world started union and also started their struggles. In Russia, 1917, October Socialist Revolution happened, and Sir was the rulers, princes were the rulers there, and under the leadership of Bolshevik party, they started their struggle there, and October Socialist Revolution happened in 1917. 1970 में जो बोल्शेविक विप्लव हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, उसके दौरान पूरी देश के अंदर, सोवियत रशिया के अंदर जो बात कार्ल मार्क्स और एंगल्स कहे गए थे, उनका एक प्रतिफलन हमको देखने को मिला। और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया में यूनियन बने, ट्रेड यूनियन बने, मजदूर यूनियन बने, और एक ऐसा समाज जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, इस समाज की कल्पना को लेके आंदोलन जो है वो और भी जोरदार हुआ। October Socialist Revolution inspired all the world, all the working class who are peasants and people who are starving throughout the world under the feudalism and also the capitalist mode of ruling. And they started to organize themselves to fight against the rulers. And in Russia, what happened? They eagerly looked into Russia, and they find that people were getting foods and they were getting education, and they were free and they were getting equality, and everything was there. And that inspired the whole world and inspired Indian revolution also. सोवियत रशिया का जो भी सफलता रही, चाहे वो सबके लिए खाना हो, सबके लिए शिक्षा हो, ये पूरी दुनिया को नए तरीके से सपना दिखाया कि अगर ये पॉसिबल हो सकता है, अगर ये मुमकिन हो सकता है, तो हमारे देश में भी ऐसा व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं। पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवाद से सताए हुए लोग, सामंतवाद से सताए हुए लोग, वो लाल झंडे के नीचे लामबंद होने लगे। People who visited Russia at that time, and from India also several people visited Russia to study about the revolution, and they formed Communist Party for India in Tashkent 1920. They formed the Communist Party for India in 1920 in Tashkent. ताशखंड में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिष्ठा हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत रशिया एक विकल्प के रूप के पूरी दुनिया में उभर के आई। पूरी दुनिया से तरह तरह के लोग रशिया जाने लगे, सोवियत जाने लगे और सीखने लगे कि किस तरीके से हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा का हम चर्चा कर सकते हैं। When they returned back to India, actually the British rulers were not afraid of International Congress or not afraid of other organizations, but they were really afraid of left ideologies and communists. जब वो लोग वापस आए, इस देश में तभी भी आजादी का लड़ाई चल रहा था, पर उसका जो तरीका था, उस तरीके से अंग्रेजों को कोई डर नहीं था। जब कम्युनिस्ट बनने लगे, वामपंथी लोग अपना संघर्ष, अपना आंदोलन करने लगे, ब्रिटिश सरकार भी उनसे डरने लगी। They charged several cases against the militant workers of Communist Party, the Peshawar conspiracy case, Lahore conspiracy case, Meerut conspiracy case, and they charged several allegations against these socialist workers throughout India. चाहे वो पेशवार मामला हो, चाहे वो लाहौर मामला हो, तरह तरह की जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उन सारे लोगों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज सरकार की तरफ से साजिशें होने लगी ताकि उनको जेल के अंदर भरा जा सके, ताकि उनका जो आंदोलन है उसको हम रद्द कर सके। But they cannot defeat the left ideology, and it spread throughout India and in Kerala, in Rajasthan, everywhere the organizations were forming according to the left ideology. Especially in the Kisan movement, the organization started, Kisan organizations also started in 1930s. जेल में बंद रख के
वामपंथी विचारधारा को कोई भी रोक नहीं सका है और अंग्रेज भी इसको रोक नहीं पाए थे। पूरी देश में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरल हो, किसान जो है, जो मेहनत कश है, वो वामपंथी आंदोलन के साथ और भी ज्यादा जुड़ने लगे। They started their fighting against landlords and they fight against untouchability. Untouchability was the worst phase of the feudalism, and they are saying that the upper class owned all the education and all the wealth, they owned themselves, and the poor peasants, they have nothing as their own. And they started their struggle against landlordism. The Kisan Sabha started their struggles against the landlordism. In Kerala, several fights were happened and several martyrs were there among these fights. किसान सभा पूरे देश के अंदर जमींदारों के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और भी जोरदार करने लगे, क्योंकि जमींदारी और सामंतवाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सामंतवाद में जो लोग सो कॉल्ड निचले वर्ण के हैं, दलित होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनका पढ़ाई का हक नहीं था, जमीन का हक नहीं था, और किसान सभा के नेतृत्व में ये सारे पिछड़े लोग, ये सारे मेहनत कश लोग इकट्ठा होने लगे शिक्षा के लिए, जमीन के अधिकार के लिए। वो सामंतवाद के खिलाफ अपना जो लड़ाई है उस लड़ाई को और भी जोरदार किए। Here in Rajasthan, the ancient struggles of these peasants was marked in the history. The Alwar struggle, and after that the Shekhawati struggle, etc. And recently in Sikar, under the leadership of Comrade Amradam, our Kisan Sabha fought hard against this new agricultural law amendment act, etc. Shekhawati is similar to Jallianwala Bagh. The ruling parties, the military men gunned and several people died on the spot itself. राजस्थान के अंदर शेखावती आंदोलन हो या फिर अलवर की आंदोलन हो, किसान आंदोलन में जो बड़े नाम लिए जाते हैं उनमें से ये दो नाम है। शेखावती आंदोलन के अंदर जो स्थिति था वो जलियांवाला बाग से कुछ अलग नहीं था। जैसे जलियांवाला बाग में भी जो शासक है वो गोली करके आम लोगों को, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, उनको खून किया था, उनका कत्ल किया था, उसी तरीके से शेखावती आंदोलन के अंदर भी जो किसान थे उनका हत्या किया गया। In Kerala also 1930s and 40s witnessed this kind of militant struggles. The Kayur, Karivallur, Vayalar, etc. In Kayur, 4 young comrades were sentenced to hanging, sentenced to death by the British rulers. Their fight was to get some property, some land, and get some food. All the landlords were exploiting them hardly, and they have nothing to eat. The village people have nothing to eat, and they fought hard. And 4 brave men called Appu, Chirugandan, Kunyambu Nair, and Abu Bakar, the 4 brave leaders of Kisan Sabha, they were sentenced to death by the British rulers. कयूर, करावल्लूर और बहुत सारे ऐसे आंदोलन केरल के अंदर हुए जिसमें जिस तरीके से राजस्थान के अंदर किसान लड़ रहे थे उसी तरीके से वो लड़े। एक ऐसा स्थिति आया जिसमें बहुत सारे लोग हमारी शहीद हुए। अंग्रेज सरकार हमारे नेतृत्व में 4 लोगों को फांसी का सजा दी, और जिस तरीके से हम भगत सिंह को याद करते हैं, राजगुरु को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना जान दिया, उन्हीं तरीके से हमारे कॉमरेडों ने भी इस देश के लिए, आम लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए अपना शहादत दी। Yes, Dipsida said, similar to Bhagat Singh and Rajguru, these 4 young leaders, they went to this death, and they faced death bravely. When they inside the jail, when they asked what is the last wish, they didn't say they want to see their mother or their father or their children, but they said they want to be in Kayur once again. And they want to fight against this landlordship, and they are ready to hang in this jail for the freedom of their society and the equality of their sisters, and for getting some foods for their young ones in future. जब उनसे पूछा गया कि फांसी के पहले आपकी आखिरी इच्छा क्या है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे मेरे माँ को देखना है, मुझे मेरी पिताजी को देखना है, या फिर मुझे मेरे बच्चों की चेहरा देखना है। उन्होंने कहा मैं फिर से कयूर में वापस जाना चाहता हूँ, वहां पे फिर से लड़ाई करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जो अगले प्रजन्म है, ताकि अगले जो मेरी पीढ़ी है वो मेरे तरह भूखे ना मरे, ताकि उनके हाथों में खाना हो। और यही हमारी संघर्षों की इतिहास है, यही हमारी संघर्षों की लेगेसी है।
comrades, we are the followers of that brave martyrs, and we have to fight hard recently to get our equality and emancipation, everything. In 1957 in Kerala, a left front government came to power there. Yes, and that government in 1957, the first elected communist government was in there in Kerala, and several new laws were enacted to emancipate the poor people in Kerala. That government was under the leadership of E.M. Shankaran Namboodiripad, and some eminent personalities were in the cabinet. And the first 20 days, within the first 20 days, that left government passed an ordinance staying the eviction of the poor people from the land, and they got the land ownership after that. जो पहला इस देश के अंदर कम्युनिस्ट सरकार बनी ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में, वो पहला ऐसा सरकार था जो सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ये तय किया कि जितने भी लोग जिनके पास जमीन की अधिकार नहीं है, जो भी गरीब लोग, मेहनतकश लोग जो मेहनत तो करते हैं पर अपने जमीन पे ही जिनका अधिकार नहीं होता, उन सारे लोगों को जमीन दिया जाएगा। पहला ही जो सिद्धांत वो हमारा सरकार ने लिया था, वामपंथी सरकार ने लिया था, वो लोगों की जमीन के लिए था। After we started the Land Reform Act in Kerala, and we find out the surplus land, and we supplied that lands to the poor people. Now more than 89 people, more than 90% of the people have some lands in Kerala. They own lands in Kerala. लैंड रिफॉर्म के बाद जब हमें पता चला कि कितना उत्वृत जमीन हमारे पास है, जो जमीन लोगों के अंदर बांट दिया जा सकता है, हमारी सरकार ने उनको लोगों के बीच बांटा। और अभी का जो स्थिति है, पूरी केरल के अंदर जो 90% लोग हैं, वो सारे लोग जमीन के मालकिन हैं। कोई ऐसा लोग नहीं है जो बिना जमीन के केरल के अंदर रहते हैं। There are some reforms in education sector and also health sector. And we have very good primary health centers throughout Kerala. In each and every village, we have a very good primary health center and public health system, and primary schools in education system, and we are improving that system more. और दूसरा चीज जो हम लोगों ने तय किया था केरल के अंदर, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य में हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे। अभी केरल के अंदर हर एक गांव में सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। प्राइमरी जो स्कूल है हर एक गांव में है, और कैसे उन स्कूल और वो स्वास्थ्य केंद्र को हम और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। Whenever left parties came to power in Kerala, there are some reforms, and we have decentralized planning. Before the 73-74 amendment of Indian Constitution, that Panchayati Raj Nagarpalika Act, before that we started our district council bill with District Council Act, and we have reservation for women before the 73rd and 74th amendment, and we started the decentralized planning in 90s, and we have very strong gram panchayats and 3-tier systems there. सरकार को लोगों के बीच ले जाने के लिए, क्षमता की और भी ज्यादा विकेंद्रीकरण करने के लिए हमने पंचायती राज में जोर दी। अभी पूरी केरल के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटी है, और हमने बहुत पहले ही 73rd अमेंडमेंट के पहले ही हमने ये तय किया, महिलाओं की जो संरक्षण है पंचायत के अंदर, संस्थानों के अंदर, वो पूरी देश से पहले केरल के अंदर उसको किया गया। Because of the decentralized planning, Kerala is the forefront of so many measures like total literacy and the health indices. In some of the health indices, Kerala is in the forefront because of the collective activities and the leadership of Communist Party. And whenever the Communist Party was in power, we have very strong laws. We enacted some laws in Kerala legislature, and that is why the total literacy is there in Kerala. हम लोगों ने पहले दिन से ही शिक्षा को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से लिया, और आम लोगों की शिक्षा के लिए, सार्वजनिक शिक्षा के लिए हमारा जो काम रहा, उसी के कारण आज केरल पूरी देश के अंदर सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों की जगह है। और ये एक वामपंथी आंदोलन, हमारी जो संशोधन रही है, उस संशोधन के कारण ही शिक्षा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा पाए हैं। And in the health sector also, some health indices, Kerala is in the forefront. The infant mortality rate
It was 12 out of 1000 live birth in Kerala in 2016. But throughout the country, it is more than 47 or it is above 60 at that time, infant mortality rate. And during the last tenure of left front government there in Kerala, it again reduced to 5 out of 1000 live births. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चा पैदा हो रहे हैं बहुत सारे टाइम वो पैदा होते ही मर जाते हैं, ये जो ट्रेंड है इसको हमने बहुत कम किया। पूरी देश के से अगर हम इसको तुलना करें तो केरल हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य की जो मात्राएं है उनमें बहुत सारी चीजों में अगला नंबर पे है, पहले लाइन पे है। Maternal mortality rate was 67 out of 1 lakh birth in Kerala in 2016. But now, during the last 5 years, it again reduced to 30 out of 1 lakh births. जो माएँ बच्चा पैदा करने की टाइम मर जाती है या फिर गर्भवती होने के बाद जो माएँ मर जाती है, वो रेट भी 2016 में जितना था, लेफ्ट गवर्नमेंट आने के बाद उनके कामकाजों के बाद उस रेट को भी हम बहुत ज्यादा कम कर चुके हैं। In all these indices, Kerala is forefront because of the ruling of left parties in Kerala and left ideology. Most of the people are left in Kerala. That is why we can achieve this very good result. And Human Development Index, that is Kerala is in the forefront. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला अगला नंबर पे है और इसका कारण ये है कि ना सिर्फ एक वामपंथी सरकार केरल में है, लेकिन केरल के जो आम लोग हैं वो भी वामपंथी जो विचारधारा है उसमें विश्वास रखते हैं। वो जागरूक है, वो सचेतन है, जो भी चीज सरकार उनसे कहने की कोशिश करती है, मानने के लिए बोलती है, वहाँ के जो आम लोग हैं, केरल के जो वामपंथी आम लोग हैं, वो भी सरकार के साथ पूर्ण रूप से सहयोगिता करती है। The last 5 years, the left front government in Kerala is trying hard to get further development in human development and to further achievements in these indices. And we started 4 missions during the last 5 years. One is called the Life Mission. It is to supply houses for the homeless people, and we had a very good survey and we find out almost 6 lakhs people have to get houses of their own, and we started building houses for them. We completed almost 4 lakh houses and give the key to them, and the work is continuing now. जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उनके लिए केरल सरकार ने एक लाइफ मिशन चालू किया है। ऐसे 6 लाख लोगों को अभी तक केरल सरकार ने अपना नया घर, उनका चाबी उनके हाथ में थमाया है। ये प्रोजेक्ट आगे भी चालू रहेगा और भी जो भी लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, ताकि उनके पास अपना घर हो सके, उसके लिए केरल की सरकार काम करती रहेगी। One mission is on education sector called Education Reform Mission, and we started renovating all the public schools, all the government schools in Kerala, and we started to make it smart school and very good building for the schools. We supplied them money and also equipments in each and every school. And during the last 5 years, we converted more than 50,000 classrooms to smart classrooms. And people are now coming back from the private sectors to the government sectors, and education is totally free there. And there are smart classrooms and very new, everything is new in there, and they are getting so many modern facilities in that schools, and the people are coming back. More than 3 lakh people came back from private sector to government sector during the last 5 years. पिछले 5 सालों में 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में वापस आए। और उसका कारण ये है क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी, जितने भी हमारी सरकारी स्कूल थी उनको हमने स्मार्ट स्कूल बनाया, उनका स्मार्ट क्लासेस लगाए गए, डिजिटाइज किया गया, इक्विपमेंट दिया गया, प्रोजेक्टर दिया गया, लैपटॉप दिया गया। और अभी केरल के अंदर जो सरकारी शिक्षा है उसमें एक भी पैसा कोई भी छात्रों को नहीं देना पड़ता है। और इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन जो पूरी देश में चल रहा है उसका विकल्प का रास्ता केरल ने हम सबके सामने दिखाया है, जहां पे बेसरकारी स्कूलों से भी सरकारी स्कूल में छात्र आने पे मजबूर हो गए। One of the mission is on health sector. It is known as Ardram. Ardram means loving or caring, like that. Ardram is a Malayalam word. It means loving and caring. That's the meaning. And it is in the health sector. And we started
renewing the health sector, and we converted each and every primary health center to family health centers. We have primary health centers in each and every village in Kerala. And now we are innovating that thing. And we are making the primary health centers people's friendly and also most modern. And our slogan is to make it patient friendly, and we want to reduce the out of pocket expenditure. आर्द्रम नाम की एक मिशन भी सरकार ने चालू किया है। मलयालम शब्द आर्द्रम का मतलब होता है किसी के लिए केयर करना, किसी के लिए परवाह करना। और इस मिशन के दौरान जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उनको पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया गया है, फैमिली हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उनमें आधुनिक जो सामान है उनको इंस्टॉल किया गया है। और इस मिशन का मेन मोटिव यही है कि आम लोग कम से कम पैसे में अच्छा स्वास्थ्य परिसेवा उनको मिल सके। जो पैसा उनको खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो दवाई लेने के लिए हो, चाहे कुछ टेस्ट करवाने के लिए हो, वो पैसा कम से कम खर्चा हो, ये इस मिशन का मोटिव है। We made a master plan for the family health centers. We have no model in front of us, but we look at Cuba, their family health system, and also the national health system in UK, and we are not imitating that thing, but we prepared during the last 5 years. We were preparing a very good master plan for the health system in primary sector, and we insisted that there should be very clean premises and modern premises in the primary health system. There should be a very good garden in front of the primary hospital, and inside when the patient enter into the primary health center, there should be a reception, airport model chairs in that, and LED presentation on the screen, and also very good toilet, and there should be a room for the mothers to for their lactating mothers. There should be a special room for them, breastfeeding rooms, and everything. Cartoon should be painted in the immunization room to attract children, and everything we insisted, and we are converting the whole system like that. More than 600 hospitals were converted like this in Kerala during last 5 years. 6000 अस्पतालों को उनका पहले का जो स्थिति है उससे हमने बदला है। हम जो भी प्रीमाइसेस है जहाँ पे हॉस्पिटल है या फिर हमारा पब्लिक हेल्थ सेंटर था, उसका जो पूरा टेन्योर है, उसका जो पूरा इलाका है, ताकि वो साफ सुथरा रहे, उसका हमने कोशिश किया है। ताकि उसका बाथरूम में साफ सफाई हो, पर्याप्त पानी रहे, उसका हमने कोशिश किया है। और ये पूरा चीज करने में हमारे लिए भारत के अंदर कोई मॉडल नहीं था। कोई ऐसा और एक राज्य नहीं है जिसने फैमिली हेल्थ पॉलिसी को इस तरीके से सोचने की कोशिश किया है। पर हमने क्यूबा, जो एक दूसरी समाजवादी देश है, उससे हमने प्रेरणा ली है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिनके अंदर ये पॉलिसी बहुत पहले से लागू है, उनसे हमारी प्रेरणा ली है। और हम कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल से लोग वापस पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे थे, उसी तरीके से हम अपना हॉस्पिटल्स को, अस्पतालों को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं। उसमें एलईडी डिस्प्ले लगा के, उसके अंदर एयरपोर्ट स्टाइल चेयर लगा के, अलग से रिसेप्शन करके, महिलाओं के लिए अलग रूम, बच्चों के लिए अलग सा रूम, ये सब करके हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाते हैं, वो भी सरकारी अस्पताल में आने पे मजबूर हो जाए। We had started to improve the taluk level hospital and district level hospital, and we had provided them very good laboratories and also operation theaters. I am very glad to say today an operation, the heart transplant operation was done in a district level hospital in Kerala. Today we started that. Last time government provided cath labs for district level, and they operated successfully and transplanted heart today in one of our district hospitals. आप लोगों के साथ एक खुशखबरी बांटना चाहते हैं। पहली बार हमारी जो जिला अस्पताल है, उस जिला अस्पताल के अंदर एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हुआ है। और ये हमारे राज्य के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हुआ है। And because of this decentralized planning and improvement and this mission, we are able to successfully contain the Nipah virus and also the infectious disease, this new virus, SARS coronavirus, etc. And once in 2018, there was a Nipah virus outbreak in Kerala,
and we contained that in a short span of time in a small place where it occurred. हमारी इस पॉलिसियों के कारण ही जितने भी महामारी, चाहे वो कोई वायरस घटित हो, चाहे वो निपा हो, चाहे वो कोरोना हो, इन सारी चीजों को हम ठीक कर पाए, इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर पाए, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य परिषेवा थी, हमारी जो हेल्थ सिस्टम था, उसके अंदर सरकार का पूरा कंट्रोल था। गांव तक, छोटे छोटे इलाके तक हमने सरकारी स्वास्थ्य परिषेवा को पहुंचाया, और इसी के कारण जब पूरा देश, पूरा दुनिया कोरोना वायरस से, कोरोना महामारी से जूझ रहा था, केरल एक ऐसा राज्य था जिन्होंने सक्सेसफुली, सफलता के साथ कोरोना महामारी को भी हरा के दिखाया। As you know, the viruses are rampant throughout the world. There are many kind of viruses. Most of them are zoonosis. It is transmitting from the animals to human being. And Nipah virus is also a zoonotic. And when it occurred in Kerala, actually we afraid at that time, but there is no time to hesitate. We should have to take decision, proper decision in proper time, and we took that decision in proper time. We made protocols and standard operating procedures. As you know, there was no treatment for the Nipah virus and no vaccination, no treatment, and the mortality rate is too high. But in Kerala, under our brave leadership of our Chief Minister Pinarayi Vijayan and the joint activity of Cabinet, we were able to contain that cruel virus in a short span of time. जब पूरा देश कोरोना वायरस या फिर दूसरे वायरसों से लड़ रहा था, वायरस घटित रोग कोई नया नहीं है, दुनिया में बार बार होता रहता है, लेकिन हम लोग पहले दिन से ही बहुत स्ट्रिक्ट रहे। पहले दिन से ही लोगों को बताया गया आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कॉमरेड पिनराई विजयन के नेतृत्व में केरला पूरा देश को, पूरा दुनिया को दिखा दिया कि वामपंथी सरकार क्या क्या कर सकता है, वामपंथी सरकार का काबिलियत क्या है। चाहे वो निपा हो, चाहे वो कोरोना हो, दोनों वायरसों को हमने लड़ा और लड़ के हराया। People throughout the world and the health community throughout the world appreciated Kerala for this, and we got an invitation from the Baltimore Virology Institute in USA, and the Honorable Chief Minister and me went there, and they asked us to explain how you contain this cruel virus in a short span of time. We explained that it is a collective activity and it is a bold activity. As the health minister at that time, I got support from all my colleagues and my government and the finance department and the chief minister, and our joint activities helped us to achieve this result. हमारी जो परफॉर्मेंस रही, हमारी जो कामकाज रही, उसको देखते हुए बल्टीमोर इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने हमें और कॉमरेड पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री है उनको न्योता दिया। वो लोग जानना चाहते थे कि कैसे हमने कोरोना वायरस को हमारी छोटी सी राज्य में हरा के रखा। हमने उन्हें बताया किस तरीके से हमने डिसीजन लिया सही समय पे, किस तरीके से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, बाकी जितने भी लोग थे, वो लोग इकट्ठे होके इस पूरे मामले को, इस पूरी स्थिति को संभाला। That experience of the Nipah incident helped us very much to contain this coronavirus also. I think you know the coronavirus occurred in Wuhan, China in 2020 January, and it came to India and it spread throughout the world, and within these almost 2 years we are suffering with the COVID-19 virus. But when we came to know that a potential virus is spreading in China, I happened to read an article or a statement of WHO in a newspaper that a potential virus is spreading in China, and at the same time we started our preparation there in Kerala. We opened our control room and we started training, and we set our team in all the airports to trace the people who are coming back from outside. जब हमको पता चला एक WHO की आर्टिकल से कि चाइना की वुहान प्रदेश में कोरोना वायरस फैला है, हमने तभी ये डिसीजन लिया। तभी हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ये ट्रेनिंग दिया गया। हमने कंट्रोल रूम खोले और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको मॉनिटर करते हुए बहुत पहले ही हमने ये प्रस्तुति ले ली कि अगर ऐसा कोई वायरस फिर से हमारे राज्य में प्रवेश करेगा जैसे निपा ने किया था, तो किस तरीके से हम उनको हरा सकता है, किस तरीके से हम उनको रिटेन कर सकते हैं।
The number of expatriates are high in Kerala. Malayalis are throughout the world, and I'm sure at that time, I was sure at that time that someone will come back from Wuhan in Kerala. As we expected, people returned from Wuhan, and in 2020 January 27th, a flight came from Wuhan carrying 72 passengers, and we traced them in the airport, and we got 3 symptomatic cases. Later they tested positive for coronavirus. 2020 की जनवरी में जब पहला उड़ान चाइना से वहां से केरल में आया, हमने पहले ही दिन इन सारे लोगों को चेकिंग किया, उनका टेस्टिंग किया गया, और उनमें से जो पहला 4 लोग थे वो सिम्टोमिक थे, वो सिम्टम दिखा रहे थे कोरोना की, और उसके बाद जब टेस्ट किया गया वो सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए. After that, we started our fight against coronavirus. Our policy was to trace, test, isolate, treat, and we started tracing all the symptomatic cases. And we set the protocol and standard operating procedure for the coronavirus also. At that time, Central Health Ministry asked us to share our protocol to other states also, because the people were coming to other states, and coronavirus spread throughout India. At that time, we are fighting against corona, and also our systematic work and our decentralized planning, our plan A, B, C, and also our pre-preparedness helped Kerala to reduce the mortality rate, and our mortality rate is below 0.5%. हमारी पॉलिसी यही थी कि पहले लोगों को हम ट्रेस करेंगे, उसके बाद उनका टेस्ट करेंगे, उनका जांच करेंगे, उसके बाद उनको आइसोलेट करेंगे, अलग कर देंगे, और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो चिकित्सा है वो करेंगे. यही पॉलिसी थी जिसके कारण कोरोना को हम फैलने से रोक लिए. क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य है जहां से बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, पूरी दुनिया भर में मलयाली पाए जाते हैं. हमारी इस पॉलिसी के कारण ही इतने सारे लोग बाहर से आने के बावजूद केरला का जो मोर्टेलिटी रेट था, मरने का जो हार था, वो बहुत ज्यादा कम था. उस टाइम केंद्र की जो सरकार है, उनके जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने भी हमसे ये पूछा कि आपका पॉलिसी क्या है, आपका प्रोटोकॉल क्या है, बताइए, ताकि बाकी राज्यों में भी हम वही प्रोटोकॉल फॉलो कर पाए. Our slogan was, at that time, our slogan was to delaying the peak, and we started the Break the Chain campaign to cut the transmission of the virus, to break the transmission of the virus. We asked the people to wear masks, keep social distance, and also to wash hands and use sanitizers, etc. Because the people's campaign is rampant in Kerala and is strong in Kerala, all the local level panchayat conducted the campaign in grassroots levels, and all the wards committees of the panchayat took the leadership of this campaign, and all the organizations including SFI, DYFI, the Mahila organization, AIDWA, and all other NGOs, everyone united to have this campaign to contain this virus, to stop the spread of the virus, and that is why we can delay the peak in the first time. हमने ये तय कर लिया था कि जो पीक होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कोरोना से आक्रांत होंगे, ये जो पूरा सिचुएशन है, इसको हम डिले करेंगे. इसके लिए हम थोड़ा वक्त लेंगे, और इसके लिए हमने ब्रेक द चेन ये कैंपेन चालू किया, जिसमें हम लोगों को कह रहे थे कि आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए, आप 2 गज का जो दूरी है वो दूरी मेंटेन कीजिए. और इस पूरे कामकाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो छात्र संगठन हो, महिला संगठन हो, युवा संगठन हो, इवन जो एनजीओज है, वो भी हमारे साथ थे, और सब लोगों ने मिलके ये काम हमने किया है. We successfully flattened the curve during the first wave, and it is also a very good result, and the whole world appreciated us. There was a writing in Guardian, and BBC also interviewed me as I was the health minister at that time, and our government's joint work helped us very much, and our chief minister declared a welfare package for COVID-19 pandemic, and we distributed all the welfare pensions properly, and also we opened community kitchens there, and we supplied foods, cooked foods for more than 80 lakhs families, and also we provided food kits to whole families without any discrimination whether rich or poor.
we distributed food packets there. That is why the poverty, increase of the poverty is not happened in Kerala. All the other parts of India, in rural place, the poverty increased more than 21% than the previous year, more than 2019. After 2020 and 21, the poverty increased. 21% people fall into the poverty line after the COVID-19 epidemic. कोविड को बस आप स्वास्थ्य व्यवस्था से हरा नहीं सकते। हमने उसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया कि लोगों को खाना मिले, कम्युनिटी किचन चलाए हमने। पूरी केरल की जितने भी जनता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, हर आदमी के लिए हमने फूड पैकेट उपलब्ध किया ताकि कोई भी आदमी केरल के अंदर ऐसा ना हो जो बिना खाना खाए, जो भूख के जिनको अपना जान देना पड़े। और यही कारण था जिसके लिए पूरी देश में जब कोरोना महामारी के बाद गरीबी बढ़ी, गरीब लोगों का संख्या बढ़ा, बच्चों के अंदर मेलन्यूट्रिशन दिखाई दी, केरल एक ऐसा एकमात्र राज्य था जहां पे ना गरीबी बढ़ा, ना लोगों की जो वेलफेयर थी, लोगों की जो स्वास्थ्य था, उस पे कोई नए तरीके से आंच आया। Young comrades, the COVID-19 pandemic is a litmus test to the system governance throughout the world. What is the difference between left ideology and what is the capitalism? And as you see, the rich countries like the capitalist countries like USA, whether they can save the lives of the people during this COVID pandemic, they cannot. Thousands and lakhs of people died all of a sudden due to COVID-19 pandemic. But in Kerala, the death is very low and we can save more people. Why? We are increasing the capacity of our health system during this time. We increased the beds, we increased the ICU beds and also ventilators. We were supplying ventilators and ICU beds for all hospitals. We are not looking the scarcity of money like that. We are spending money in that area, and we increased the production of oxygen also. We purchased the oxygen cylinders properly and we distributed that to the government hospitals, and the treatment is totally free for everyone without the discrimination of poor or rich. Everyone was entering, and now also they are entering into government hospitals and they are getting oxygen and they are getting treatment and they are getting proper rooms there, the proper beds there. That is the difference between left ideology and the capitalism. But in America, there is an insurance system there in health sector, but it is not affordable to everyone. They were not free to enter to the hospital. They have to stay in their homes and they didn't get oxygen properly at that time, and thousands and lakhs of people died all of a sudden due to this infectious disease. ये महामारी एक तरीके से परीक्षा था इस दुनिया के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो वामपंथी विचारधारा है और जो डानपंथी या फिर जो पूंजीवादी विचारधारा है, कैसे वो लोग अलग अलग है। जहां पे पूरी दुनिया में ज्यादातर सरकारें लाशें गिन रही थी, हर दिन हर रोज लोगों की मौत हो रही थी, केरला एक ऐसा राज्य था उनकी वामपंथी विचारधारा के कारण जिन्होंने मौत का जो संख्या है उसको कम कर पाया। पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था था वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा नहीं देना पड़ता, आप जाएंगे, अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अब सारे लोगों के लिए मुफ्त का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चिकित्सा है, वो उपलब्ध किया गया। और यही कारण था और यही एक अलग से बोलने वाली बात है, सीखने वाली बात है कि जब पूरा दुनिया क्राइसिस में होता है, विपद में होता है, तब वो वामपंथा है, वामपंथी विचारधारा है जो आम लोगों को बचा सकता है। Comrade, we can get rid of this disease or escape from this disease only through vaccination. All the other measurements, all the other methods are there and we are fighting. But without getting proper vaccine, we cannot escape from this infectious disease. But the vaccination policy, what is it? The rich countries are getting the major share and the poor countries are not. The African countries, they are getting a mere share, only 1% of the total vaccine production. And we should have to fight for vaccine internationalism and to get equality in vaccine share, and we should have to fight for that. In India also, the central government should
supply vaccine for the poor states and poor people properly. Then only we can escape from this virus. सबके लिए वैक्सीन कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो दुनिया हो। हमने देखा जो अमीर देश है या फिर जो सरकार के पास में रहने वाले राज्य है, वहां पे ज्यादा वैक्सीन मिल रहा है, और जो गरीब देश है या फिर जो सरकार के विपरीत में रहने वाले राज्य है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। अगर हमको कोरोना को हराना है तो वैक्सीन यूनिवर्सलिज्म, या फिर जिसको जितना वैक्सीन की जरूरत है उसको उतना ही वैक्सीन देने का जो काम है वो काम हमको करना पड़ेगा। Comrades, I am not explaining each and everything because time is too short and I have to wind up my speech. But I want young comrades to study properly and also to fight against the ruling front in India. BJP is and RSS combined is in the ruling front now. They are at the same time they are capitalist and they are feudalist also. The feudalist ideology is rampant here, untouchability is here, atrocities against women is here, and the disparities of girl child is here, and we should have to fight for emancipation of women, emancipation of girl child, and also we have to fight the feudal ideology of the BJP RSS Sangh, and I think you will fight hard to get a very good future. मेरी आप लोगों से यही अर्जी है कि आप खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और इस देश के अंदर जो मौजूदा सरकार है, जो आरएसएस है, बीजेपी है, जो जातिवादी है, जो रूढ़िवादी है, जो हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ है, पिछड़े लोगों के खिलाफ है, आप उनके खिलाफ लड़ेंगे और आप जीतेंगे। यही बात के साथ वो अपना बात कही है। One more thing. Yes. Before concluding, I want to say one more thing, that the Kisan movement here, Comrade Amraram will speak about that, and you should study your document and have a very good discussion in your inner meeting, in your convention, and everyone should participate in that, and you should raise your words there, you should discuss about there, and you are the future, and we can say that you are brave comrades and you are the future, and we should have to fight bravely in future, and the comrades are with us, and how you see how the Kisan movement and their struggle get some achievements, and the government is ready to yield before Kisan movement, and how with the victory they got, and heartwarming victory they got out of the Kisan struggle, and the victory is with ourselves, and you should fight hard to get equality, and independence means the equality, and the secularism in our the very preamble of our constitution was written. It is written that our country is a democratic, secular, socialist republic. Democracy doesn't mean the accommodation of Tom or Harry to the office. It means perfect equality in opportunity. The coming Congress or BJP alternatively doesn't mean democracy, and democracy means perfect equality in opportunity, and secularism should be here because there are so many religions here and fighting with each other. That doesn't become a democratic country, and we should have to fight for the actual true democracy and secularism, and we should have to move for socialism and fight bravely, and the victory will be ours. And with these words I am concluding my speech. Lal Salam. कॉमरेड ने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है, जनवाद जो है, वो उसका मतलब बस सरकार बदलना नहीं है, समानता है, सब लोगों के लिए समानता है। वो ये विश्वास करती है कि आप लोग, हम बहुत साहस से ये लड़ाई लड़ेंगे, और जिस तरीके से किसान आंदोलन ने केंद्र की सरकार को झुका के रखा, हम भी झुका के रखेंगे, जीतेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ उन्होंने अपना बात खत्म किया है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड शैलजा। और अब एसएफआई ने स्टडी बाय रिसर्चरों के द्वारा जो रिसर्च की गई है उसका नाम है पेंडेमिक दैट एंडेड एजुकेशन फॉर मेनी। इसका विमोचन कॉमरेड शैलजा और तमाम मंच साथी करेंगे।
साथियों, एसएफआई राजस्थान राज्य कमेटी के साथ इस बात का ध्यान दें और तमाम डेलीगेट और जो लोग इस सभा के अंदर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब तक लास्ट वक्ता नहीं बोलेगा कोई भी साथी अपनी चेयर से उठ के नहीं जाएगा। कोई भी साथी चेयर से उठ के नहीं जाएगा। डिसिप्लिन का परिचय देना है, क्योंकि पूरे भारत से लोग यहाँ आए हैं। उनको एक अनुशासन का जो एसएफआई के अंदर होता है वो अनुशासन एसएफआई राजस्थान के द्वारा यहाँ दिखाना है, उसका परिचय देना है। क्योंकि समय ज्यादा हो गया, अब मैं अगले वक्ता के रूप में और साथ ही शॉर्ट में ही बोलेंगे जेएनयू की छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष, उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अपनी बात रखें। लाल सलाम कॉमरेड्स, बात को संक्षेप में ही रखेंगे, लेकिन आज जिस वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वेंशन के लिए, कॉमरेड के शैलजा हैं यहाँ पे, और इससे पहले भी जितने वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तारित तौर में बताया कि आज के समय पे जो चुनौती हमारे सामने है कि इस लड़ाई को जिस तरीके से महिलाएं इस समय पे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, शिक्षा संस्थानों में हो, एक तरीके का अटैक फेस कर रहा है। इस चुनौती के साथ हम लोग किस तरीके से लड़े, ये आने वाले 2 दिन में आज से जो कन्वेंशन शुरू हो रहा है उसमें हम लोग इसमें विस्तारित तरीके से बात करेंगे। लेकिन चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, हम जिस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल से आए हैं आज यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, हम लोग साफ तौर से जानते हैं कि पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन के अंदर महिलाओं का स्थिति क्या है, छात्रियों का स्थिति क्या है, और जब स्कूल कॉलेज हर जगह पे बंद हो गया, हर जगह पे बाहर निकलने का जो अपॉर्चुनिटी है, शिक्षा पाने की जो अपॉर्चुनिटी बंद हो गया, किस तरीके से छात्राएं, खास करके जो महिला छात्राएं हैं, उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सबसे ज्यादा जो देखा गया कि महिलाओं को शादी करने के लिए मजबूर किया गया। हमारे आसपास में आज जब हम लोग स्कूल कॉलेज वापस आने की आंदोलन कर रहे हैं, हम शायद जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे साथियां हैं हमारे साथ जो हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल के अंदर उनको अपना जो पढ़ाई है उसको छोड़ना पड़ा। और इसके लिए एसएफआई ऐसा छात्र संगठन है जो एक अल्टरनेटिव इस देश के अंदर दे रहे हैं, और एसएफआई की जो महिला साथी है वो सड़क में उतर के इस सरकार को चुनौती देके बता रहे हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव है। आप शायद अल्टरनेटिव को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव हमारे पास है। केरल के अंदर हो और चाहे हर जगह पे जो वामपंथी शक्तियां हैं, उन्होंने अल्टरनेटिव हमारे सामने दिया है कि अगर शिक्षा संस्थानों में लोगों की जो पढ़ने लिखने की ताकत है उसको हमें बढ़ाना है, महिलाओं का जो एनरोलमेंट रेट है उसको बढ़ाना है, तो हमें भी वहां पे शिक्षा संस्थान में जो फीस है, जो हाइक बार बार किया जा रहा है, उसको कम करना है। आज हमारे सामने और एक बड़ा चुनौती है जो कि नई शिक्षा नीति की है, जिसकी बात बार बार हर एक स्कूल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आज के समय पे सरकार एक दबाव के तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहा है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ ये बात नहीं है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में महंगाई बढ़ेगा, एक मॉडल प्रक्रिया तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो संगठनिक छात्र आंदोलन है इसको तोड़ा जाए। आज एसएफआई हर जगह पे, हर एक राज्य में जिस तरीके से यूनियनाइज कर पा रहा है, छात्रों को एक बैनर के अंदर ला पा रहा है, इसको तोड़ने की भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि किस तरीके से छात्र आंदोलनों को तोड़ा जाए इस देश के अंदर। और इसीलिए नई शिक्षा नीति के विरोध हमें करना है। नई शिक्षा नीति के तहत सिर्फ यूनियनाइजेशन या फी हाइक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का एक मॉडल को थोपा जा रहा है देश के अंदर, आने वाले समय में इस पैंडेमिक का व्यवहार करके ये सरकार पूरी कोशिश कर रहा है कि छात्राएं, और खास करके वो छात्राएं जो गरीब तबके से आता है, जो छात्राएं पिछड़े वर्ग के तबके से आते हैं, जो महिलाएं हैं जिनके घर में अनुमति नहीं मिल पाता है कि जाएगा। और ये शायद आप और हम हर कोई जो कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, इस बात को एहसास कर पा रहे हैं कि कितना नामुमकिन हो चुका है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रहा है, हॉस्टल का फीस जिस तरीके से बढ़ रहा है, 2019 के अंदर हमने देखा था दिल्ली से लेके हर एक राज्य के अंदर किस तरीके से छात्र आंदोलन लड़ा गया था, सड़क पे उतारा गया था। और एक बात साफ तौर से बताने की जरूरत है कि इस लड़ाई में जब हम लोग लड़ रहे हैं तो महिलाएं
कदम कदम मिलाते हुए सामने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आरएसएस और भाजपा की सरकार को चुनौती देके बोल रहे हैं कि इस लड़ाई में हम लोग सामने से लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे। और अगर भाजपा का सरकार समझता है कि महिलाओं को इस तरीके से हराया जा सकता है तो हम हारने वालों में से नहीं है। हम सामने से इस सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर महिलाओं की अधिकार छीना जाएगा, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो, हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर हो, हम लोग सामने से लड़ेंगे। और ये स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद का ये जो पताका है, ये हम सब में सामने से लेके लड़ेंगे। एक बात बोल के खत्म करना चाहेंगे। कॉमरेड अंजलि जो कर्नाटका से है, स्कूल वहाँ पे जो मैल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा डेटा आया है कि वहाँ पे पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर। और कॉमरेड अंजलि का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कॉमरेड अंजलि जो एसएफआई के कॉमरेड है हमारे, उन्होंने जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, हमारी राजनीति है, हमारी जो परचम है, जो पताका है, उसको सामने लेके इस लड़ाई के लड़ रहे हैं। कॉमरेड अंजलि जैसे ऐसे हजारों महिलाएं, हजारों कॉमरेड हमारे इस संगठन के अंदर है। आज जो देश के कोने कोने के अंदर इस जो फ्लैग है हमारा, इसको सामने लेके जा रहे हैं और ये चुनौती दे रहे हैं कि देश के अंदर, समाज के अंदर महिलाओं की बराबरी की हिस्सा होनी चाहिए। और इस हिस्सा को लेने के लिए हम लोग सिर्फ कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन से आगे भी ये लड़ाई पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर से और संघर्षों के तौर से सड़क से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और ये आश्वासन है कि जिस तरीके से आने वाले पीछे 2 साल हम लोग लड़ाई किए हैं, सड़क पे उतर के लड़ाई किए हैं, जबकि पूरा देश भर में बंद था, सब कुछ बंद थे। एसएफआई ऐसा छात्र संगठन था जो बाहर आके एक ऑल्टरनेटिव दिखाए हैं। आने वाले समय में भी इस लड़ाई को हम लोग एकजुट होके हर एक राज्यों के अंदर ले जाएंगे। और जो हमारे महिला साथी है, जो बहुत सारी रिसीविंग एंड में है, जिनको शिक्षा इस समय पे मिल नहीं पा रही है, एक साथ एकजुट होके इस लड़ाई को सामने लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसी के साथ अपना बात खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। कॉमरेड, जो साथी दोनों साइड में मंच के खड़े हैं वो साथी कुर्सियों पे जाके बैठ जाएं। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय अध्यक्ष एसएफआई के कॉमरेड वीपी सानू को आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात रखें। कॉमरेड वीपी सानू। सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। अभी लंबे भाषण देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हिंदी भी नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑल इंडिया का एक प्रोग्राम है। वो क्या बोले, वो हिस्टोरिक स्ट्रगल था, वो किसान स्ट्रगल, उसका जीतने के बाद, विक्ट्री के बाद ये पहला एसएफआई का नेशनल प्रोग्राम है। वो किसान का विक्ट्री आम आदमी को, हमारा राष्ट्र में वो इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन में हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड। अगले साथी एसएफआई राजस्थान की कन्वेनर साथी बबलेश वर्मा वो आए और बात रखें। सम्मानित मंच पे उपस्थित एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड वीपी सानू, राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मयूख विश्वास, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और छात्रा सब कमेटी संयोजक कॉमरेड दीपशिता दर और देश के कोने कोने से पधारे हुए कॉमरेड्स, मैं इस राजस्थान की पावन धरा पे आपका छात्रा सब कमेटी राजस्थान की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस जो राज्य ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वेंशन होने जा रहा है, इसके लिए, इसके सफल प्रयास के लिए आपका बधाई देती हूँ और हम सभी मिलकर इसको सफल बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। इंकलाब
जिंदाबाद। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय संयुक्त सचिव कॉमरेड दीपशिता दर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। एक बार तो मेरा भाषण हो चुका है, ये दोबारा मैं देने वाली हूँ। तो मुझे पता है ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, अभी जल्दी जल्दी हमको भी खत्म करना है और हमारा सेशन स्टार्ट करना है। पर दो बात कह के मैं खत्म करूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि राजस्थान के अंदर हम अपना गर्ल्स कन्वेंशन करेंगे, बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछा कि राजस्थान ही क्यों, सीकर ही क्यों। हमने उन सब लोगों से यही जवाब दिया कि पिछले 1 साल से इस देश के किसान जो सड़क पे बैठे हुए थे, इस देश के किसान जो सर्दी में गर्मी में एक दिन के लिए भी अपना जुमला, अपना जो आंदोलन है, अपना जो लड़ाई है, वो लड़ाई छोड़ के नहीं गए। ये हम सब के लिए, हम लोग जो छात्र राजनीति करते हैं, हम लोग जो इस देश के युवा है, नौजवान है, ये आंदोलन ने नए तरीके से हमको विश्वास दिलाना सिखाया। ये आंदोलन नए तरीके से हमको सपना दिखाना सिखाया। जब किसान सड़क पे बैठे, किसी को लगा नहीं कि नरेंद्र मोदी अपना किया हुआ बात वापस लेगा, क्योंकि वो तो मोदी जी है, वो कह दिया तो हो गया। किसी को लगा नहीं कि चाहे कितना भी आंदोलन हो, कितना भी लड़ाई हो, आरएसएस बीजेपी को कोई झुका सकता है। लेकिन ये सीकर की, राजस्थान की, इस देश की आम किसान, आम मेहनत कश लोग, आम मजदूर है जिन्होंने सड़कों पे उतारा और ये हम सब लोगों को जताया कि अगर हमारी आंदोलन में, अगर हमारी लड़ाई में मेहनत है, हिम्मत है, शहादत है, तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नरेंद्र मोदी का बाप हो, हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जो किसानों से लड़के, किसानों से टकरा के जीत पाया है। हम इसलिए राजस्थान में हमारा छात्र कन्वेंशन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पे जब किसान उतरे, महिलाएं थे, पुरुष थे। हमारी जो कल्पना है, कल्पना में किसान मतलब हमेशा कोई पगड़ी पहना वाला, मूछ वाला आदमी, ये कल्पना हमारी होती थी। इस देश की माओ ने, इस देश की बहनों ने, इस देश की महिलाओं ने, सीकर की महिलाएं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की महिलाएं ये सड़क पे उतर के कही कि हम सिर्फ किसी की माता, किसी की बहन, किसी की बीवी नहीं है, हम भी किसान हैं, हम भी मजदूर हैं। और इसीलिए हम सीकर में अपना छात्र कन्वेंशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम जो नौजवान है, हम जो छात्र है, हम उनसे सीखे कि कैसे लड़ाई करना होता है। हम लोग जो है, इस देश में एक लड़की पैदा होने के बाद ही उसको कहा जाता है अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जब इस कन्वेंशन का हम ओपन सेशन प्लान कर रहे थे, हमने बहुत सोच समझ के कॉमरेड शैलजा टीचर और हमारी साथी सोनिया मान को बुलाया। हम दिखाना चाहते थे कि अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी दो, अगर आप हमें मौका दो, हम डॉक्टर, इंजीनियर तो क्या, इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर सब कुछ बन सकते हैं। वो मौका हमें मिलना चाहिए, वो समान अपॉर्चुनिटी हमको मिलना चाहिए, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम जब सोनिया मान को बुलाए, हम चाहते थे वो आके आपके साथ बात करें, क्योंकि अगर आप लड़की है, अगर आप राजनीति करती है, अगर आपके पास अपना ओपिनियन है, आप फेसबुक में लिखते हैं कि एसएफआई जिंदाबाद, आप फेसबुक पे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी के, आरएसएस के, एबीवीपी के आईटी सेल आ जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हुए जेंडर इंसेंसिटिव बातें करते हैं। हम चाहते थे कि सोनिया मान जी आए और वो अपना बात कहे, वो दिखाए कि कैसे वो सारे ट्रोलिंग के बावजूद भी, वो सारे चीज सहने के बाद भी उन्होंने अपना जो उसूल है, उस उसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने अपना जो लड़ाई है, वो लड़ाई छोड़ के भागा नहीं। हम भी भारत के छात्र फेडरेशन की जितने भी लड़कियां हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे घर में हमको टोक दिया, चाहे सड़क पे बैठे हुए लुखे ने हमें कुछ बोल दिया, चाहे एबीवीपी या फिर दूसरे पार्टी के लोग हमसे कुछ भी कर ले, लेकिन ये झंडा जो है, ये सफेद लाल जो झंडा है, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का जो झंडा है, इसके साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे, इसको छोड़ के नहीं भागेंगे। इन्हीं विश्वासों के साथ आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारी रैली में आए, हम जब प्रचार कर रहे थे, बार बार जाके यही कह रहे थे कि पूरी देश से लोग आपके शहर में आने वाला है, आपका जिम्मेदारी है।
खिलाना नहीं है संघर्षों में। मेहमान नवाजी मतलब बस फूल देना नहीं है संघर्षों में। मेहमान नवाजी मतलब कंधे से कंधे मिला के, हाथ में हाथ थाम के, सड़क पे उतर के आना। मैं सीकर की सारी जनता से, सारे छात्रों से मेरी शुभकामनाएं, मेरी धन्यवाद जताना चाहती हूँ कि जो ऐतिहासिक रैली का बात हम लोगों ने कहा था, जो वादा आपने किया था, आपने वो वादा निभाया है। अब सभी लोगों को भारत की छात्र फेडरेशन की ओर से हमारी क्रांतिकारी इस्तकबाल, हमारी लाल सलाम, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, भारत की छात्र फेडरेशन जिंदाबाद।